हेलो चैम्प्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट चैप्टर से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर योर सीयूईटी प्रेपरेशन। नाउ आई पर्टिकुलरली रियली एंजॉय दिस चैप्टर। आई फील ये आपके क्लास 12 में भी होना चाहिए था बिकॉज दिस चैप्टर really I feel is sort of an encouragement for the students to take up entrepreneurship as a career. काफी कुछ बच्चों को पता लगता है अबाउट हाउ टू बी एन entrepreneur, what is entrepreneurship all about. So quite an interesting and relevant chapter I feel. चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसके एमसीक्यूज. So the first question, which is very important, entrepreneurs undertake. Definitely entrepreneur का मतलब ही होता है somebody who takes risk to start something of his or her own. तो रिस्क तो डेफिनेटली है, बट किस तरह का रिस्क? द आंसर इज कैलकुलेटेड रिस्क. कुछ तो वो सोच समझ के रिस्क लेते होंगे या ऐसे ही बस बिना सोचे हाई रिस्क ले रहे हैं? नहीं, द आंसर इज कैलकुलेटेड रिस्क. ये जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंटरप्रेन्योर के, उस टॉपिक में एक पॉइंट है रिस्क टेकिंग, वहां पे गिवन है. ओके, देन which of the following statements does not clearly distinguish between entrepreneurship and management? आपकी बुक में डिफरेंस गिवन है entrepreneur और मैनेजर के बीच में. So entrepreneurs are the founders of the business and managers operate it. ये सही है. Entrepreneurs are owners of the business, managers are employees. This is also correct. Entrepreneurs earn profits, managers earn salaries. Correct. Entrepreneurship is once for all activity, management is a continuous process. This is not a difference, क्योंकि ऐसा नहीं है कि entrepreneurship आपने एक बार कर दी और बस खत्म. This also needs to be continued. Okay, then next question. Which of the following are the steps involved in setting up a new business? This is an important topic. इससे related question past या paper में भी आया था. Steps जो है एक business को start करने के लिए, इसके लिए हमने एक mnemonic बनाया है. अगर आपको अच्छा लगता है आप यूज कर सकते हो. RE PAPA. RE PAPA. That is resource mobilization, scanning the environment for opportunities, then development of product और service idea. P से product रखा है. Assessment of feasibility, then appraisal by funding agencies, project commissioning and launch, and adaptation and management of growth. So इसमें से कौन सा steps हैं? ये सभी हैं. स्कैनिंग द एनवायरनमेंट फॉर अपॉर्चुनिटीज, डिसाइडिंग द प्रोडक्ट और सर्विस आइडिया, एनालिसिस ऑफ फीजिबिलिटी, ऑल ऑफ द अबव. ठीक है. देन relationship between entrepreneurship and economic development can be highlighted with the help of the following functions performed by entrepreneur. ये भी एक important topic है. फंक्शन से related भी हमने एक निमोनिक बनाया है. फिग विद अ ट्रिपल आई. फिग जैसे एक फ्रूट होता है, ड्राई फ्रूट कह सकते हो. फिग CC. So this is fostering spirit of exploration, experimentation, and daring. Then impact on local communities, increasing economic efficiency, increasing the role and spectrum of economic activities, generation of employment, generating employment opportunity for others, capital formation and contribution to GDP. तो इसमें से वो कह रहे हैं कि कौन से functions हैं. तो contribution to GDP भी है, capital formation भी है, generating employment. So all of the above. ठीक है. चलो, व्हाट आर द प्राइमरी ड्राइवर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर? तो ये एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन टॉपिक में है कि जब आप एक एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो आपकी क्या मोटिवेशन हो सकती है. नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर, नीड फॉर एफिलिएशन, नीड फॉर ऑटोनॉमी. ठीक है. तो इसमें से ये सभी है. ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन. डैश रेफर्स टू द नीड फॉर फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस. जैसे कुछ बच्चे कहते हैं ना, हमें एंटरप्रेन्योर बनने का मन है क्योंकि हम किसी के अंडर काम नहीं कर सकते, हमें फ्रीडम चाहिए, हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, हम सिर्फ अपने आप को रिस्पॉन्सिबल या अकाउंटेबल होना चाहते हैं, किसी और को नहीं. सो दिस इज नीड फॉर ऑटोनॉमी. नीड फॉर ऑटोनॉमी. देन dash need is desired to conform to the wishes and aspirations of the people whom he or she values. फॉर एग्जाम्पल कोई कहते हैं कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है क्योंकि मुझे अपनी फैमिली के लिए अच्छे पैसे अर्न करने हैं. तो आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, हु आर योर लव्ड वंस. इवन अपनी कंट्री के लिए अगर आप करना चाहते हैं, पेट्रियोटिक फर्वर है अगर आपके अंदर कि मैं बिजनेस करना चाहता हूं क्योंकि मैं अपने देश को आगे लेके जाना चाहता हूं. सो दिस इज ऑल्सो सेम. नीड फॉर एफिलिएशन. नीड फॉर एफिलिएशन. Then dash refers to the authority to influence and direct people.
आप चाहते हो कि आप लोगों को ऑर्डर्स दो, आप लोगों को इन्फ्लुएंस करो, आपकी पावर होनी चाहिए. सो दैट इज नीड फॉर पावर. ओके, नीड फॉर पावर. Then, dash is a need for achievement refers to mastering, manipulating, organizing the human resources and ideas in order to attain something difficult. आप एक entrepreneur बनना चाहते हो क्योंकि आप कुछ अलग करना चाहते हो, कुछ ऐसा जो डिफिकल्ट है, जो हर कोई नहीं कर सकता. आप अपने टैलेंट को यूज करना चाहते हो. आप वो 9 to 5 रूटीन फॉलो नहीं करना चाहते बिकॉज उसमें बहुत प्रेशर होता है टू अडियर टू रूल्स एंड रेगुलेशन. आप वो नहीं करना चाहते. आप कुछ अचीव करना चाहते हो, समथिंग विच इज डिफिकल्ट ऑल्सो. सो दैट इज नीड फॉर अचीवमेंट. यानी आप ऑन्टरप्रेन्योर बनना चाहते हो और आपकी मोटिवेशन है नीड फॉर अचीवमेंट. देन आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑन्टरप्रेन्योर. कैरेक्टरिस्टिक्स भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. हमने निमोनिक बनाया रोजिल, अगर आप इससे याद रख सकते हैं. रिस्क टेकिंग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, सिस्टमैटिक एक्टिविटी, देन इनोवेशन, लॉफुल एंड पर्पसफुल एक्टिविटी. तो इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन. चलिए आगे चलते हैं. आइडेंटिफाई द करेक्ट फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर इन रिलेशन टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अभी मैंने आपको फंक्शंस बताए थे एंटरप्रेन्योर के. सो दोज आर FIG विद III, GGCC. तो इसमें से कौन से फंक्शंस है? कैपिटल फॉर्मेशन है, यस. इंप्रूवमेंट इन इकोनॉमिक एफिशिएंसी है. आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट ऑफरिंग इसमें नहीं है. अपॉर्चुनिटी स्काउटिंग भी नहीं है, वो रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स में है. जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये भी है. सो द आंसर वुड बी जिसमें A, B और E है. A, B और E यानी दिस ऑप्शन. ठीक है, चलो मूविंग ऑन. Entrepreneurial Development Institute of India was established by. तो Entrepreneurial Development Institute of India जो कि कंडक्ट करवाता है इन entrepreneurial awareness and entrepreneurial development programs. और एक और टॉपिक है इससे रिलेटेड, इसने आपको 15 entrepreneurial competencies बताई हैं, जिसके लिए भी हमने निमोनिक बनाया है. स्पेस, मिस, पिक, कप. स्पेस, मिस, पिक, कप, जो 15 कॉम्पिटेंसीज हमें EDI ने बताई है. वैसे ये गुजरात गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया है. ठीक है, ये भी आप देख कर जाएंगे. स्पेस, मिस, पिक, कप, एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज जो EDI ने लिस्ट की है. वैसे अगर ये 15 छोड़ दें तो जो एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज हैं वो 4 है. कैश, KASH, नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स एंड हैबिट्स. तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन वही है. एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज डज नॉट इंक्लूड इंटेलिजेंस. कैश में ये नहीं आ रहा है. ओके, देन in the roles and functions of the entrepreneur identified by Kilby, which of the following is not an aspect of political administration? This is also given in your book. Now, Peter Kilby was an economist. उन्होंने आपको roles and functions of entrepreneur बताए हैं. 4 broad categories बनाई हैं उन्होंने. First, developing exchange relationships, then political administration, then management control or technology. तो उसमें पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन में इसमें से कौन सा नहीं आता? डीलिंग विद पब्लिक ब्यूरोक्रेसी ये तो आता है. देन मैनेजिंग ह्यूमन रिलेशंस विद इन द फर्म. जब आपको ह्यूमन रिलेशंस मैनेज करने हैं उसमें भी पॉलिटिकल एस्पेक्ट है. कहते हैं ना, यू हैव टू बी पॉलिटिकली करेक्ट और यू हैव टू बी डिप्लोमेटिक जब आप लोगों से डील करते हैं. तो ये भी उसमें है पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन. मैनेजिंग कस्टमर एंड सप्लायर रिलेशंस is also a part of political administration according to the role and functions of entrepreneur as stated by Peter Kilby. जो इसमें नहीं है वो है introducing new production techniques and products. ये टेक्नोलॉजी के अंडर आता है. ठीक है, तो ये भी आप एक बार देख कर जाएंगे. Then putting up the factory premises, installing the equipment, obtaining the supplies of the input materials with a view to starting the manufacture and marketing the product. ये क्या होता है? ये होता है project commissioning, which is one of the steps in the process of setting up a business. Project commissioning and launch. Okay, then the whole process of setting up new business is called. This process is called entrepreneurship. वो हम पढ़ते हैं ना starting of the chapter में SVO analogy. S subject which is entrepreneur, V is verb which is the process entrepreneurship, and O is the object or the outcome which is enterprise.
सो SVO एनोलॉजी के अकॉर्डिंग भी हमें ये पता है कि एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है. Then, the established ways of life need to be challenged, and change must be seen as an opportunity to improve rather than something to be scared of. Which function of entrepreneur? Functions मैं फिर से आपको बता रही हूँ. FIG with a triple I, GGCC. तो कुछ नया करना, कुछ अलग करना, ब्रेकिंग द कन्वेंशनल थॉट्स, ब्रेकिंग द शैकल्स ऑफ ट्रेडिशन, जो पुरानी सोच है उसको चैलेंज करना, दैट इज फॉस्टरिंग द स्पिरिट ऑफ एक्सप्लोरेशन, एक्सपेरिमेंट एंड डेयरिंग. एग्जाम्पल भी गिवन है बुक में आपका मूवी का, लगान मूवी का, जिसमें भुवन द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द मूवी प्लेड बाय आमिर खान, उसने कैसे क्रिकेट टीम बनाई फ्रॉम विलेजर्स जिन्होंने उस गेम को कभी देखा भी नहीं था. तो उसने एक्सपेरिमेंट किया, कितना कुछ नया किया, जो हमारी स्टीरियोटाइप्स है उनको ब्रेक किया. सो दैट इज फॉस्टरिंग द स्पिरिट ऑफ एक्सप्लोरेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड डेयरिंग. ठीक है, चलो नेक्स्ट. एवरी न्यू बिजनेस क्रिएट्स बैकवर्ड लिंकेजेस एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस. ये कौन सा फंक्शन है? देखो, जब भी आप कोई बिजनेस शुरू करते हो तो आपके बिजनेस से और भी बहुत सारे लोगों का बिजनेस बढ़ सकता है. सपोज इफ आई मैन्युफैक्चर पेन्स, तो मुझे इसके लिए रॉ मटेरियल भी चाहिए होगा. मैं किसी से इंक खरीद रही हूँ, प्लास्टिक खरीद रही हूँ, तो उनका भी बिजनेस ग्रो करेगा. दिस इज बैकवर्ड लिंकेज. और फिर जब ये पेन बन जाएगा, आई विल सेल इट. देन बीच में कुछ मिडिलमैन होंगे, होलसेलर्स, रिटेलर्स, उनका भी बिजनेस बढ़ेगा. दिस इज फॉरवर्ड लिंकेज. तो अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो आप दूसरे लोगों के लिए भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं थ्रू बैकवर्ड लिंकेजेस एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस. दिस इज जनरेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर अदर्स. देन द टर्म फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप is derived from the verb entreprendre. I don't know really how to say this because it has French origin. तो यही क्वेश्चन है कि ये जो वर्ड है एंटरप्रेन्योरशिप, इसका फ्रेंच ओरिजिन है. नाउ इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है बिकॉज लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि कम्युनिकेशन जो वर्ड है दैट इज डिराइव फ्रॉम अ वर्ड कम्युनिस विच मीन्स कॉमन अंडरस्टैंडिंग, और उसका लैटिन ओरिजिन है. ठीक है, तो ये भी आपकी बुक में गिवन है. इस टाइप का भी वो कुछ पूछ सकते हैं. नाउ फुल फॉर्म ऑफ ITES, दिस इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज. ठीक है, ये भी आप देख जाएंगे. So these were the very important questions from this chapter. Mainly you focus on characteristics of entrepreneur, functions, then entrepreneurial competencies, entrepreneurial motivation, then the steps in the process of business. ये सब बहुत important topics हैं. Right, Sham? So I hope this video helped you. If it did, please like it and subscribe to our channel. अभी और भी बहुत सारे important MCQs हम practice करेंगे. So अब हम मिलते हैं next video में.